Most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. Dear student, we're going to finish canto number 5. In today's lecture, we'll see what happens when she fought with Baron, and ultimately she's pricking with needles, and he lost. While lied down, Baron is saying that though I have lost, you are victorious. But think, maybe in future you will be overcome by another person. So the thing is that I have lost this battle. It does not matter. You are victorious, and future maybe somebody else will overcome you or subdue you. So that is why don't be so proudy. And this is on and on. Such kind of situation is going on over there. They are fighting, and the fighting take place through whips, through clips, through bodkins, through needles. They are pricking, and through snuff box, through seeing, through watching, through staring, ogling, something like that. They are fighting like that. And now Belinda's lock will be admired. Pope will admire that you're lost, oh beautiful lady, you should not worry at all. You have lost your lock. Sure, you have lost, but this lock is going to be going to twinkle like star, and it will just blazing on the stars, and it will be a new additions. It will be a great contributions and on star. So it will stay forever in the store. If all the locks of the ladies, they are contributed, they are collected together, they can't create such kind of envy like your hairs, your lock, or your lock of hair has created. So mean to say that if all the ladies, they are put together, locks are put together, they cannot make such kind of contribution what your hair has created. So he admires that your hair is no part of the sky that will twinkle forever over there, that will shine forever over there. People go, people come, but they watch that Belinda's hair. Even the people, they will watch through the telescopes, and even the predictions of the king's fate will be determined through your hairs. So he said that don't think your hairs are trivial. Your hair are very, very valuable, because they will be contributed as a part of the sky, and they will blaze over there, they will shine over there, it will shine over there amongst the stars. And the people, they used to the beaux and lovers, they will used to watch from London, and if they will think it as a goddess of beauty, they will admire you, and they will even vows with their friends, and lovers will admire it. They will vows, they will even swear through your lock, and your lock is very valuable. आपकी जो लॉक है बड़ी वैल्यूएबल है, और ये पार्ट ऑफ स्काई बन चुकी है, और वहाँ पे ब्लेज करती रहेगी, वहाँ पे चमकती रहेगी, शाइन करती रहेगी. और आप इसे मामूली हेयर की लॉक जो है ना समझें, क्योंकि इसको गॉडेस ऑफ पोइट्री ने देखा है ऊपर जाते हुए, और बहुत सारी स्पिरिट्स जो हैं ऊपर छोड़कर आई हैं. जब तक ये ट्रैवल करती रही है, यहाँ से जो एक शूट निकला है, इसका ब्लेजिंग शूट निकला है, और ऊपर गई है ये लॉक, तो वहाँ तक इसे छोड़कर आए हैं, और ये स्टार का हिस्सा बन चुका है. जैसे कि लोग भी ये जानते हैं, जो चीज़ गायब हो जाती है वो ऊपर आसमान पे चली जाती है. इसी तरह बैरन से भी वो जो लॉक है बैरन के हाथ से निकल गई है, तो गॉड ने ये फैसला किया, जैसे कि उसका तराजू आया था, उसने कहा कि किसी मॉर्टल के पास उसको नहीं रहना चाहिए. ये ऑर्डर हुआ है गॉड की तरफ से कि इसको एक पार्ट बन जाना चाहिए स्काई का. एंड नाउ योर लॉक इज अ पार्ट ऑफ स्काई, एंड दैट इज नो मोर विद द मॉर्टल. इट्स नॉट लिविंग विद द मॉर्टल, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्काई. पीपल गो, पीपल कम, लेकिन वो ऊपर शाइन करती रहेगी. और यू लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, यू शुड नॉट वरी ऑन योर लॉक, योर कटिंग ऑफ लॉक, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द स्काई. अगर सारी दुनिया की और खूबसूरत औरतों की जो ये चुटिया है, ये लॉक है, अगर मिला दी जाए तो वो इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती थी जितनी तुम्हारी अकेली लॉक ने किया है. एंड इट्स अ गुड
इट्स गुड योर लॉक हैज़ बिन कट, और ये जो कट हुई है और इस पे तुम्हें खुश होना चाहिए। और साथ वो ये भी कहता है कि हर इंसान ने जैसे, और मैं तुम्हें ये भी कहूँगा कि तुम सोचो कि तुम्हारी खूबसूरत आंखों से कितने लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, उनका भी ज़रा अंदाज़ा करो कि तुमने कितने लोगों को मारा है अपनी आंखों से, और तुम्हारी आंखें जो हैं ये भी एक दिन डस्ट में मिल जाएंगी। और बहुत सारी खूबसूरत औरतों की जो आंखें हैं खूबसूरत, ये भी किसी दिन डस्ट में मिल जाएंगी, और ये जो हेयर है, ये लॉक्स जो हैं ये भी डस्ट में मिल जाएंगी। तो यू बेलिंडा, योर हेयर्स हमेशा रहेंगे चांद पर, ये आसमान में चमकती रहेगी और वहाँ पे एक सितारा बनकर रहेगी। लोग जो है नजूमी जो है इसे देखकर फैसले करेंगे, लोग हुक्मरानों की किस्मत का, पॉप की डाउनफॉल का, और बड़े बड़े डिसीजन जो है इसके बलबोते पर होंगे, इसके म्यार पर किए जाएंगे। तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बट रादर यू शुड हैप्पी बिकॉज योर लॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द स्काई एंड पीपल विल एडमायर इट। जो बोज लवर, यंग लवर और जितने भी दीवाने हैं, बांके नौजवान हैं, वो भी इसको देख देख कर कसमें खाएंगे। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी रादर देन गेटिंग वरीड अबाउट दिस बिकॉज इट्स नो मोर विद द मॉर्टल्स। अब तो बैरन के पास भी ये नहीं रही और हमेशा ऊपर चमकती रहेगी। इसको हम कहेंगे मेटाफोरिकल, उसने यहाँ पे यूज़ किया है। ये आ भी सकता है, आपको अंडरलाइन करवाऊंगा इसको। तो आपने इसमें इसका आंसर ये करना है कि पॉप इज सेइंग दैट योर बिकॉज आई हैव रिटन पोएम एंड नाउ योर मैटर इज नॉट लिमिटेड वन, यू आर नॉट लिमिटेड, इट इज नॉट लिमिटेड टू योर फैमिली because no, it has been read in the syllabus, people will read in the books and people will read and person to person this story will travel, and it is a part of the sky, mean it is a metaphorical because it is going to be internationalized issue. People will read it, people will talk about it, people will learn about your story. You are not limited now, you are not family matter now, it is going beyond your matter. People will read about it, people will think about it, people will contemplate about it, people will discourse about it, people will discuss your matter, and it is no part of the sky, it is just like a international issue. ये कोई अब छोटा इशू नहीं रहा, अब ये बहुत बड़ा इशू बन गया, ये आसमान का हिस्सा बन गया है, यहाँ पे ये चमकती रहेगी। मीन टू से you can't hide this matter now because I have make it mortal with my lines and it is in the poetic lines. I have encapsulated in my lines. मैंने इसको इनकैप्सुलेट कर लिया अपनी लाइन में, मैंने लिख दिया है और लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे और ये हमेशा अब छुपी हुई चीज़ नहीं रहेगी। इसको मेटाफोरिकली हम इसको डिफाइन कर देंगे। So let's see. Line to line text. Respected students, dear students, you are listening to the voice of Sir Rana and we are going to study line to line text. 729. Kind, have a look. 733, I think we've studied till 733. The same his ancient personage to deck. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। Her great great grandsires. Grandsire का मतलब लिखें जो परदादा, जो दादा से भी पहले होते हैं ना, परदादा, ग्रैंड ग्रेट यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जो। अब वो जो बॉडकिन है, जो सुई उसने उसको नीडल जो चुभोई है, उससे वो उसको भी डिफाइन करेगा। देखिए एक छोटी छोटी चीज को, जैसे वो उसका नेजा है तो वो बहुत बड़ा, सैटर्न का नेजा इतना बड़ा है कि वो पाइन ट्री के बराबर है, और जो उसने शील्ड पकड़ी हुई है वो बिल्कुल ग्लैलियो की जो वो टेलीस्कोप है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, उससे जो चांद देखा था वो इतनी बड़ी है, ठीक है, वो उसने पकड़ी है, इतना बड़ा नेजा है। देखिए उसका कैसे उसका ग्रैंड फिगर दिखाया गया है, किसका, सैटर्न का, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। अब यहाँ पे भी छोटी सी चीज को वो पीछे लेके जाएगा, फिर वो उनके दादा, उसके परदादा, दादा, फिर नीचे आएगा उसकी माँ, उसके वालद, और इस तरह पूरी डिस्कशन करेगा। मैं आपको अभी इसको वन बाय वन आपको बताता हूँ कि वो कैसे वो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेगा। पहले तो आप ऐसा करें कि कागज लें, उसके ऊपर लिखें कि कहता है कि जो बॉडकन है, जो वो उसके पास नीडल जो उसने उसको प्रिक किया है बैरन को, वो सबसे पहले बॉडकन जो थी वो इसके ग्रैंड सर थे, यानी उसके जो परदादा थे उसके पास थी, और उसको अपने लॉकेट जो है वो गले में डाला करता था। यानी जो बेलिंडा का जो ग्रैंड सायर जो उसका परदादा है वो क्या करता था, ये बॉडकिन जो है इसने पहले ये लॉकेट की फॉर्म में थी, वो अपने गले में डाला करता था। यानी लॉकेट पहले लिखें और नीचे लिखें, फिर चूंकि उसकी डेथ हो गई
तो उसके बाद ये लॉकेट जो है, इस लॉकेट को उसकी जो विडो थी, जो उसकी बेवा थी, वो उसने क्या किया, उस लॉकेट का उसकी बकल बना ली। ठीक है, वो बकल वो अपने गौन में डाला करती थी, यानी वो गौन में वो उसकी जो मिंटू से जो परदादी है ब्लिंडा की, वो क्या करती थी, वो अपने गौन के साथ लगा लेती थी। दूसरे नंबर पे गौन लिख लें। अब उसके बाद उसकी भी डेथ होगी, तो ये उसकी अब आ गया, ये अब जो बकल है वो किसके पास आ गई है, उसकी ग्रैंड मदर यानी दादी के पास आ गई है, उसकी परदादी से। अब जब उसकी ब्लिंडा की दादी के पास आई है तो उसने विसल बना ली। वो सीटी के लिए यूज कर, छोटी थी तो वो सीटियां बजाया करती थी, विसल बजाती थी। ठीक है, ट्रम्पट सा बाजा सा बना के वो उससे खेलती, यानी वो बकल से मजीद क्या बना गया, एक विसल बन गई। अब विसल के जरिए फिर वो क्या, वो वहां से ट्रैवल करती हुई विसल जो है, वो बाजा जो है, वो ब्लिंडास की मदर जो है, ग्रैंड मदर से क्या कहां पहुंचा, ब्लिंडा की मदर, और फिर उसको मजीद उसको रीमोल्ड किया गया, तो यानी दोबारा मोल्ड करके उसका क्या बना लिया, हेयर पिन। अब जी उसका हेयर पिन बन गया है। अब वो आ गया किसके पास, ब्लिंडा की। अब किसके पास है, वो ब्लिंडा की जो मदर है उसके पास है, वो हेयर पिन यूज करती है। अब वो ब्लिंडा की मदर यूज करती रही, फिर ब्लिंडा की मदर की डेथ होगी, वो हेयर पिन किसके पास आ गई, अब वो ब्लिंडा के पास है। ब्लिंडा अपने बालों में वो लगाती है और वही वो उसके जरिए उस पर वार करती है और वो तबाह बर्बाद हो जाता है और वो गिर पड़ता है। देखिएगा, द ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सायर्स वर अबाउट हिज नेक। तो उसका जो परदादा था वो वही जो बॉडकिन है, वो कभी उसका लॉकेट बना के अपने नेक में पहना करता था। इन 3 सील्स रिंग्स विद आफ्टर मेल्टरडोन। उसको क्या किया गया, 3 सील्स रिंग, उसका वो रिंग सा बनाकर वो क्या अपने गले में उसने डाला हुआ था। वो आफ्टर विच मेल्ट, और फिर उसमें मेल्टडोन उसको पिघलाया गया। फ्रॉम अ वास्ट बकल फॉर हिज विडोज गोन। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी विडो, उसकी बेवा के लिए उसका गोन का बकल बनाया गया। हर इन्फेंट्स ग्रैंड मदर्स विसल्स नेक्स्ट इट ग्रो। और फिर उस बकल से उसकी जो ग्रैंड मदर है ब्लिंडा की, उसकी बनाई गई एक बाजा, एक विसल बनाया गया। द बेल्स शी जिंगल्ड एंड द विसल ब्लो। और वो क्या करती, उससे घंटियां और वो विसल जो है वो बजाती रहती। देन इन बॉडगन्स ग्रेस हर मदर शेयर्स। और फिर क्या किया गया, उसको मजीद रीबोल्ड किया गया, तो उसका बॉडगन, उसकी नीडल्स सी बनाएगी, क्लिप सा बनाएगा। ग्रेस हर मदर्स हेयर, और उसकी मदर ने अपने बालों में लगाया। विच लॉन्ग शी वोर एंड नो ब्लिंडास वियर्स। काफी अरसा तक वो पहने रखा उसने, और फिर अब जो है ब्लिंडा जो है वो अपने बालों में लगाती है और उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहा है। बोस्ट नॉट माई फॉल्स शी क्राइड इंसल्टिंग फो। मेरी इस हार पर खुश ना हो ए इंसल्ट करने वाले दुश्मन। कौन कह रहा है, ब्लिंडा से बैरन कह रहा है कि तुमने मुझे गिरा लिया है, ये चुबो कर, तुम्हारे पास बहुत बड़ा वेपन है जो तुम्हारे परदादा दादी और उसके बाद परदादी और उसके बाद दादा, ग्रैंडफादर और उसकी मदर और ये सारे पहनते आए हैं। इट्स वेरी डेंजरस एंड आई हैव बीन लॉस्ट एंड डू नॉट boast on it because you can fall in future because somebody else can subdue you, somebody else can get victory over you. Don't boast. इतना शेही ना बिखरो, इतना खुश भी ना हो कि मेरी हार पे तुम खुश हो रहे हो। So don't do that. कौन कह रहा है, बैरन। हमने देखा कि जब सैटर्न जो है वो हार जाता है तो वो अपने वो क्या कहता है अपनी स्पीच में, कहता है, what though the field be lost, all is not lost. Our unconquerable will, the study of revenge and immortal hate, what else should not be overcome. क्या हुआ कि मैं अगर फिजिकली हार गया हूं, मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक मेरा कर्ज जो है, यानी उसको मौका पिक बनाई गई है ना, तो कोशिश की गई है कि इसको वैसा क्रिएट करने की, कर नहीं सका लेकिन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, साथ साथ मानी लिखते जाएं। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, अपने पॉइंट्स जो हैं साथ साथ बनाते जाएं। बिट ट्रिकी बट नॉट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड करना इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। देन इन अ बॉडगन्स ग्रेस्ड हर मदर्स हेयर्स विच लॉन्ग शी वोर्स एंड नो ब्लिंडा वियर्स।
boast not my faults, he cried, insulting foe. मुझे इंसल्ट करने वाले दुश्मन, मेरी बेइज्जती करने वाले दुश्मन, तुम मेरे इस फाल पर, मेरी डिफीट पर खुश ना हो. Though by some others shalt be laid as low, और तुम्हें कोई और गिरा देगा, या तुम्हें कोई और भी तो जीत सकता है आने वाले वक्तों में. आज तुम जीते हो, कल हो सकता है कि कोई और आके तुम्हें गिरा दे, या तुम्हें जीत ले, या तुमसे विक्ट्री हासिल कर ले. It changes with the passage of times. Maybe in future somebody come and he or she will take your place and you will be defeated. तो यहाँ पे ये है कि आज तुम मुझे जीत गए हो, तो इन फ्यूचर तुम्हें कोई और भी जीत सकता है. Not think to die dejected my lofty mind. और मैं परेशान नहीं हूं, और ये भी ना सोचना कि मैं to die dejects my lofty mind, कि मेरा जो आला माइंड है वो परेशान हुआ है इस हार से, इस तकलीफ से, इस दुख से, इस गिरने से, इस डिफीट से. तुम विक्ट्री हासिल कर गई हो. डज नॉट मैटर व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट. कुछ नहीं हुआ. नॉट थिंक टू डाई डिजेक्ट माई लॉफ्टी माइंड. और ये ना सोचना मैं मायूस हुआ हूं, मेरा अजीम माइंड जो है वो इस छोटी सी बात से मायूस हुआ है. ऑल दैट आई ड्रेड इज लीविंग यू बिहाइंड. मुझे एक ही खतरा है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ जाऊंगा और कोई और मेरी जगह ले लेगा. अब लवर जो होता है ना, सबसे पहले बड़ा खतरा उसे यही होता है बेचारे को कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो कोई और मेरी जगह पे ना ले ले, तो मेरी जगह पे कोई और आए, मुझे अच्छा नहीं लगता. ये वैसे भी इंसान के अंदर है कि वो ये सोचता है कि यार मैं अगर इसे छोड़ दूंगा तो कोई और मेरी जगह कल कोई ये किसी और की बाहों में होगी, तो दैट विल बी वेरी बैड फॉर मी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो ये सोचते रहते हैं लवर्स. एंड ऑल दैट आई ड्रेड इज लीविंग यू बिहाइंड. और मुझे एक ही खतरा है कि तुम मेरे बाद किसी और की बाहों में होगी. मेरे बाद जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो somebody will take my place, कोई और मेरी जगह ले लेगा. That dread is leaving you behind, कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ रहा हूं. Rather than so let me still survive. बल्कि मुझे जिंदा रखो, मुझे मारो नहीं, मुझे जिंदा रखो. And burn in the Cupid's flame, but burn alive. और मुझे जलने दो God of love के जो जलाई हुई आग है, जो क्यूपिड की, जो गॉड प्यार के देवता, जो प्यार और सेक्स का देवता है, नाम है क्यूपिड ग्रीक मिथोलॉजी में, उस बादशाह की जलाई हुई आग में हमेशा जिंदा जलने दो और मैं आहें भरता रहूं. और मेरी ये सजा है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं और आहें भरता रहूं. जो जलाई हुई आग है क्यूपिड की. क्यूपिड इज द गॉड ऑफ लव एंड सेक्स. रिस्टोर द लव, आप गूगल कर सकते हैं. क्यूपिड जो है उसकी पिक्चर जो है बड़ी यानी वो देखने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने आपको सेंड नहीं की. रिस्टोर द लॉक शी क्राइज एंड ऑल अराउंड. रिस्टोर द लॉक, मेरी लॉक वापस करो. शी क्राइज एंड ऑल अराउंड, और वो बोलने लगी, चिल्लाने लगी. रिस्टोर द लॉक, मेरी लॉक वापस करो. अब जब इस तरह की रेपुटेशन क्रिएट की जाती है ना, पोएट क्रिएट करता है, इसे कहते हैं यूफोनी. क्या कहते हैं इसे? यूफोनी. EUPHONY, यूफोनी. इसके बारे में भी आज मैंने टीच किया है. सो व्हेन द राइटर इज रिपीटिंग एंड ही वांट्स टू गिव यू हार्मोनियस टेक्स्ट, ही वांट टू गिव रिदम, म्यूजिक, ही वांट दैट द रीडर शुड गेट. रिस्टोर द लॉक, शी क्राइड ऑल अराउंड, द vaulted roofs rebounded. और जो वॉल्ट हैं, उसकी जो बिल्डिंग की जो रूफ की जो छतें हैं, उनकी जो वॉल्ट्स हैं वो क्या रीबाउंड करने लगी, वो गूंजने लगी. नीचे देखिए. Not fierce Othello is so loud as trains roared for the handkerchiefs that caused his pain. Strain, pains. You kindly note it down. Alexander Pope used to write a heroic couplet. Couplet means two lines, but two lines are iambic pentameters. They are joined in a rhymed form. ये इस तरह ज्वाइंट हैं कि ये एक रिदम क्रिएट करती हैं, दोनों राइम्ड भी होती हैं, जैसे तो ट्रेन और पेन, फिर हीरो कपलेट बनता है.
नॉट फियर्स ओथेलो इज सो लाउड एज ट्रेंस। यहां पे उसने रेफरेंस यूज किया है ओथेलो का। ओथेलो जो होता है, लिख लें इसका भी, ओथेलो की जो ओथेलो का एक दोस्त होता है जो मकार मीक दोस्त होता है, जो मीन दोस्त होता है, नाम होता है अयागो। अयागो कहता है कि कैसियो, माइकल कैसियो के साथ तुम्हारी बीवी जो डेस्डेमोना है, ओथेलो को कहता है कि तुम्हारी बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैं माइकल कैसियो के साथ। तो तुम ऐसा करो, अपनी बीवी से पूछो कि वो जो रुमाल तुमने अपनी बीवी को दिया था उसने किसको दिया है। अगर तो वो तुम्हें दे देती है तो इसका मतलब है उसके पास है, अदरवाइज तो वो फिर उसने अपने लवर को दे दिया है, नाम है माइकल कैसियो। कहता है, वो जाके चीखता है, चिल्लाता है, मैंने जो इनाम तुम्हें रुमाल दिया था, बताओ डेस्डेमोना मेरा रुमाल कहां है। तो वो बताती है यहां कहीं रखा था, वो खो गया है। वो माइकल कैसियो वहां से चुरा के जाके किसके पास, किसके कमरे में रख देता है, माइकल कैसियो के, अयागो जो मकार दोस्त होता है। असल में वो ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे। कौन चाहता है, अयागो एक चाल चलता है और उससे वो गुस्से में अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, डेस्डेमोना को। बाद में उसे पता चलता है कि मेरी वाइफ जो है वो ठीक थी, मासूम थी, मैंने उसे जानबूझ के ऐसे मार दिया है, यानी गलती में मार दिया है। तो ये वो बहुत चीखता है, तो वो उसने उसका रेफरेंस यूज किया, अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट आ सकता है। रोड फॉर द हैंकरचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन। इतना तो वो भी नहीं चलाया था अपने रुमाल के लिए, जब उसको उसकी बीवी ने धोखा दिया, उसे फील हुआ कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। बट सी हो ऑफ एन एम्बिशियस एम आर क्रॉस्ड। और देखो कैसे इंसानों के बनाए हुए जो एम्बिशियस एम है वो खत्म हो जाते हैं, क्रॉस्ड हो जाते हैं। कैसे, एंड चीफ कंटेंट टिल ऑल द प्राइज इज लॉस्ट। और चीफ जो है वो कंटेंट हो जाता है, एंड चीफ जो है और बड़े बड़े जो बादशाह हैं, टिल ऑल द प्राइस इज लॉस्ट। और वो जितनी भी एफर्ट करते हैं उनकी सारी एफर्ट जो है वो लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई इनाम नहीं मिलता बाज का। द लॉक obtained with the guilt and kept with pain। और वो लोग जिसके लिए बड़ी तवज्जो की गई, बड़ी कोशिश की गई, जिसके लिए फ्रेडोलेंट कॉजेज जो हैं, जो टूल्स हैं वो भी इस्तेमाल किए गए, धोखे से वो जो लॉक हासिल की गई, लट हासिल की गई, एंड kept with pains, और बड़ी मुश्किल से, दुख से, बड़े तकलीफें उठाकर बैरन ने उसे अपने पास रखा हुआ था। इन एवरी प्लेस sought but sought never। और अब बैरन उसे तलाश कर रहा है, उसे कहीं भी नहीं मिल रही, उसकी सारी कोशिशें जो है वो वेन, नाकाम होती हैं। With such a prize no mortal must be blessed। कुदरत ने यह फैसला किया है, गॉड ने यह फैसला किया कि कोई भी मॉर्टल जो है वो इस अजीम लट को अपने पास नहीं रख सकता। सो हेवन्स डिक्री, अब ये हेवन का ऑर्डर है, आसमान से ऑर्डर है, गॉड का जॉब का ऑर्डर है। विद हेवन्स हु कैन कंटेस्ट, और अब आसमान वाले के साथ कौन मुकाबला कर सकता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट के साथ कौन मुकाबला कर सकता है, या आसमानी ताकत के साथ कौन लड़ सकता है। विद हेवन्स हु कैन कंटेस्ट, कंटेस्ट होता है लड़ना, हु कौन, हेवन आसमानी ताकत के साथ। अब आसमानी ताकत के साथ कौन लड़े, उसने तो फैसला कर दिया है। सम थॉट इट माउंटेड टू द ल्यूनर स्फीयर्स, कुछ तो ये सोचते हैं कि ये आसमान का, चांद का हिस्सा बन गई है। सिंस ऑल थिंग लॉस्ट ऑन अर्थ आर ट्रायड देयर, और जो चीजें जमीन पर गुम हो जाती हैं वो क्या चली जाती हैं, ट्रायड्स देयर, वो ऊपर आसमान पर चली जाती हैं। देयर हीरोज विट आर केप्ट इन द थंडरस वेसेस, यहां आसमान के ऊपर जो बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस होती हैं, बेलिंडा जैसी, उनकी जो अकलें हैं, उनकी जो सेंसेस हैं, उनकी सेंस जो है वो किसमें रखी जाती है, उनकी अकल कंटेनर में, बड़े बड़े कंटेनर, पॉन्डरस बिग वेसेस कंटेनर में रखी जाती हैं। एंड बोर्ड्स इन द स्नफ बॉक्स एंड ट्वीजर केसेस, और जो आवारा बंक के नौजवान होते हैं, आवारा लोग होते हैं, उनकी जो अकलें हैं वो स्नफ बॉक्स में रखी जाती हैं, नस्वार की डिबिया में, और ट्वीजर केसेस, वो जो कैंचियों के जो केसेस होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनमें रखी जाती है। देखना कितनी रिडिकुलस बातें करता है पोप। देयर ब्रोकन वोज एंड डेथ बेड आर्म्स आर फाउंड, और यहां पे ब्रोकन, टूटे हुए वादे, एंड डेथ बेड आर्म्स, और मरते वक्त दी गई जो ज़कात है वो भी रखी जाती है। द लवर्स हार्ट विद एंड ऑफ द रिबन बाउंड्स,
और लवर्स के दिल जो हैं उनको भी रिबन बाउंड्स के साथ यहां पे रखा जाता है। द कॉर्टियर्स प्रॉमिस एंड द सिक मैन प्रेस। जो बड़े बड़े कॉर्टियर्स होते हैं, वो जो झूठे वादे करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और कॉर्टियंस, वो भी कहता है यहां पे वादे रखे जाते हैं। एंड सिक मैन, ये सारा सटायर कर रहा है। एंड सिक मैन्स प्रेयर्स, और बीमार लोगों की जो दुआएं होती हैं वो भी यहाँ रखी जाती हैं। यानी जब बंदा बीमार होता है ना, फिर बड़ी बड़ी दुआएं करता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जैसे हमारे लोग आजकल मुसीबत आई है तो सारे लोग, पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी, अब सारे लोग जो हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं और वो दुआएं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कभी किसी को कॉल ना करो, कभी किसी का ना पूछो, चाहे वो मरे या जिए, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो फौरन आप कॉल करके पूछो यार मुझे सोल्यूशन बता। बंदा पूछे पहले भी, बंदा कभी कॉल कर ले, पहले भी कभी हाल चाल पूछ ले। तो कोशिश करनी चाहिए कि सबको गॉड के साथ भी ऐसा ताल्लुक बनाएंगे, आप उसके सामने जाएं तो आपको एटलीस्ट पता हो कि आपने पहले भी कभी उससे डरे हैं, रिगार्ड करते हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट। द स्माइल्स ऑफ द हार्लट एंड द टीयर्स ऑफ हियर। एक जिस्म बेचने वाले की जो मुस्कुराहट है, हार्लट होती है प्रोस्टिट्यूट, एक जिस्म बेचने वाले की मुस्कुराहटें, एंड द टीयर्स ऑफ हियर्स, और मरते वक्त और बहाने करते हुए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू, जब कोई रिलेटिव्स जो है वो मर रहा होता है जिसके पास जायदाद होती है, जैसे कोई किसी का ग्रैंडफादर मर रहा हो तो सारे उसके पास आकर रोने लग जाएं, हाँ 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 हम आपसे दादाजी बहुत प्यार करते हैं, पहले कभी बेचारे को पूछा नहीं, ताकि वो आपके नाम कोई जायदाद कर जाए। दिस इज आल्सो ओवर देयर। यानी ये सारी चीजें वहां रखी जाती हैं। ये इज स्टायरिंग। आगे वो कहता है केज फॉर द नेट्स एंड द चेन्स टू योक अ फ्ली। और यहां पे कहता है कि ये जो नट्स, जो हशरात होती है ना छोटे छोटे, ये जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ये जो मक्खियां होती हैं, कहता है इन नेट्स के लिए भी वहां पे पिंजरे बने हुए हैं। एंड द चेन्स टू योक अ फ्लीज। और जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, पिस्सू टाइप, इनके लिए भी कहता है यहां पे जंजीरें बनी हुई हैं। ड्रायर्स बटरफ्लाइज। हाँ जी जी बोल। अनु उस बारे में बात हो रही है। वो कह रहा है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये अलग-अलग वहां पे पड़ी हुई हैं, और उसने कहा कि जो अजीम लोग होते हैं उनको अलग बड़े बड़े बॉक्सेस में रखा जाता है, जो हल्के कम अक्ल होते हैं उनको उसने ट्वीजर और ये सारा कुछ बताया, और कहता है कि ये जो चीजें हैं ना, इनको ये जस्ट वो स्टायर कर रहा है। ठीक है, अब देखें, अब फ्लीज जो है उसको कभी योग किया, उसको आप योग कर सकते हैं उसकी तरह, बैल की तरह। तो कहता है उसकी भी चेन्स बनी हुई है। अब कभी फ्ली जो छोटा सा होता है इंसेक्ट, अब उसके लिए तो चेन्स नहीं है, इट्स जस्ट ही इज जस्ट स्टायरिंग ऑन सोसाइटी दैट सच काइंड ऑफ पीपल आर हियर। इनकी जो सारी चीजें हैं वो वहां पे रखी हुई हैं। ड्राइड बटरफ्लाइज, और कहता है वहां पे सूखी हुई खुश्क जो बटरफ्लाई हैं, जो डेड बटरफ्लाइज हैं, वो भी पड़ी हुई हैं। एंड द थॉर्म्स ऑफ द कैसुआ ट्री का मतलब लिखें डिसऑनेस्ट और फ्लैशियस, डिसऑनेस्ट। और कहता है कि वहां पे गंदी किताबें जो है, जो गंदा लिटरेचर है, उनके वॉल्यूम भी पड़े हुए हैं। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये यहाँ पे ये चीजें करते थे, अब सारी चीजें उनके अमाल भी ऊपर गए हैं। वैसे ही वो असल में ये बता रहा है कि वट एवर यू हैव बीन डूइंग ओवर हियर, दीज थिंग्स आर ओवर देयर ऑन द स्काई। So he is just metaphorically telling them these things you've been doing over here and they are as it is over there. जो आप करते रहे हैं वो वहां पे रिकॉर्डेड है। पॉप जो है एक रोमन कैथोलिक से ताल्लुक रखता है, सेक्ट से, और इस तरह के जो लोग होते हैं ये बड़े मजहबी होते हैं। वो मजहबी था, उसने बाइबल को भी पढ़ा है डेफिनेटली। बट ट्रस्ट द म्यूज, शी सॉ इट अपवर्ड राइज। और उस म्यूज पर, शायरी की देवी के ऊपर यकीन करो। शायरी की देवी बिलिंडा, तुम परेशान ना हो और शायरी की देवी के ऊपर यकीन करो। शी सॉ इट अपवर्ड राइज, उसने तुम्हारी जो लॉक है उसको ऊपर जाते देखा है शायरी की देवी ने। ही इज जस्ट स्टायरिंग, यू नो दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ।
अब ऐसी चीजें रियल लाइफ में तो नहीं होती, वो एक मॉक एपिक लिख रहा है तो उसको वो साथ साथ असल एपिक जो ओरिजिनल एपिक है उसको उसकी पैरोडी करता जा रहा है। दो मार्क्ड बाय नन बट क्विक पोएटिक आइज, और तुम्हें पता है कि उसको किसने देखा है, एक पोएटिक आइज से उसने देखा है, किसने, शायरी की देवी ने। सो रूम्स ग्रेट फाउंडर्स टू द हेवंस withdraws to the proclus alone confessed in the view। ये रूम के अंदर वो कहता है, रूम का जो फाउंडर था नाम था रोमुलस। ये जो रोमुलस जो है, ये जब ऊपर इसको बुलाया गया था तो इसको सिर्फ एक बंदे ने देखा था, नाम था उसका प्रोक्लस। प्रोक्लस ने क्लेम किया था कि जब रोमुलस ऊपर गया था तो चांद का हिस्सा और स्टार का हिस्सा बन गया था, ऊपर चमकता रहा है, तो उसको सिर्फ एक बंदे ने देखा है, नाम है प्रोक्लस। सो रूम्स ग्रेट फाउंडर, रूम का ग्रेट फाउंडर नाम था उसका रोमुलस। द हेवंस विड्रो, जब उसको हेवन ऊपर ले गई, चांद आसमान ऊपर ले गया, तो प्रोक्लस अलोन कन्फेस्ड इन अ व्यू, तो उसने ये क्लेम किया प्रोक्लस ने कि मैंने उसे ऊपर चांद का आसमान का हिस्सा बनते देखा है। As sudden star shoot through the liquid airs, और वो बिल्कुल एक स्टार की तरह ऊपर की तरफ गया और फिर वो ऐसे चमका जैसे लिक्विड एयर होती है। And drew behind a radiant trails of air, और बिल्कुल बालों की लट की तरह ट्रेल की शक्ल में ऊपर गया। तो कहता तुम तो बिल्कुल उसकी तरह, रोमुलस की तरह हो जो ऊपर गया, तुम्हारे तो बाल जो हैं बिल्कुल ऐसे हैं। इसने किसके साथ उसको कंपेयर किया, रोमुलस के ऊपर जाने को जो ग्रीक मैथोलॉजी में मौजूद है, रोमन का जो फाउंडर है। ये आप इसका हवाला दे सकते हैं। नॉट द बैरनेस लॉक्स फर्स्ट रोज सो ब्राइट, द हेवंस bespanglings with the dishevelled light। और कहता है कि ये तो इतनी चमक, जितनी तुम्हारी लॉक ने चमक दिखाई है, वो बैरनेस एक मलका थी। उस कहता है कि ये जो मलका है बैरनेस, ग्रीक मैथोलॉजी में मौजूद है, कहता है ये इतनी रोशनी तो उसकी लॉक ने नहीं दिखाई जब वो आसमान की तरफ गई थी। द हेवन bespangling with the dishevelled light, और हेवन जो है वो इतनी डिस्पेंगलिंग, इतनी डेकोरेट नहीं हुई। हेवन उस वक्त आसमान इतना डेकोरेट नहीं हुआ था उसकी लॉक से जितना तुम्हारी लॉक से हुआ है। द सिल्फ, अब देखिए ये सारे इशारे हैं, ये सारे रेफरेंस हैं और ये ग्रीक से हैं और इनको आपने एक्सप्लेन करना है। द सिल्फ बिहोल्ड इट किंडलिंग एज इट फ्लाई, और सिल्फ जो है जब तुम्हारी लॉक ऊपर जा रही थी तो सिल्फ जो है उन्होंने देख, बिहोल्ड का मतलब होता देखना, उन्होंने देख लिया और वो उसके साथ साथ उड़ती गई हैं। एज इट फ्लाई, जैसे जैसे वो ऊपर उड़ रही थी तो वो भी साथ जा रही थी। एंड प्लीज परस्यू इट्स प्रोग्रेस थ्रू द स्काई, और वो हत्ता के जब तक आसमान तक नहीं पहुंची आपकी लॉक तो वहां तक परस्यू करते रहे हैं, ताकब करते रहे हैं और खुश होती रही हैं सारी सिल्फ जितनी भी स्पिरिट्स है। Thus the bows mount shall from the mall सर्वे, और लंदन के माल पर बैठकर, माल पर खड़े होकर या माल के करीब जो माउंट्स हैं, जो लवर हैं, जो आवारा लवर हैं, वो क्या करेंगे, यंग लवर क्या करेंगे, वो तुम्हें अब देखेंगे क्योंकि तुम आसमान का हिस्सा बन गई। एंड हेल विद द म्यूजिक एंड प्रोपिशियस रेस, और फिर उसके साथ म्यूजिक बजाएंगे और तुम्हें खुशामदीद कहेंगे। दिस द ब्लेस्ड लवर शैल फॉर वेनस टेक, और वो तुम्हें गॉडेस ऑफ ब्यूटी समझेंगे, वेनस समझेंगे और तुम्हें गॉडेस ऑफ ब्यूटी समझेंगे। एंड सेंड अप बोज फ्रॉम द रोजामेंडास लेक, और रोजामेंडा की झील पर खड़े होकर वो तुम वादे करेंगे, अहदो पैमान करेंगे अपने प्यार के। एंड पैट्रिज सून शैल व्यू द क्लाउड्स स्काई, और पैट्रिज जब कभी, आपने देखा हमने गलेलियो को पढ़ा था तो उसमें एक वो व्यू करके बताता है उनमें से कि गलेलियो के अंदर उस जो टेलीस्कोप बनाता है कि अब वो प्रेडिक्शन करते हैं, यानी फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में तूफान आएगा, फ्यूचर में ये आएगा। तो कहता है बिल्कुल ये पैट्रिज की तरह है, दिस पैट्रिज सून, और कहता है ये पैट्रिज जो है वो जल्द ही बगैर बादलों वाले आसमान से तुम्हें देखेगा। वन नेक्स्ट ही लुक्स थ्रू द गलेलियोज आईज, और फिर जब पहले तो वो खुद देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा कि ये क्या मैंने देख लिया।
फिर कहता है वन नेक्स्ट द लुक थ्रू द स्काई गैलीलियो's आई, जब वो टेलीस्कोप को, गैलीलियो की टेलीस्कोप को यूज करेगा, तो फिर वो जब तुम्हारा नजारा करेगा तो फिर क्या करेगा, ये साफ नहीं आया, नेक्स्ट आ जाए। एंड हेंस इंग्रेशियस एंड एग्रीगेशियस विजर्ड शल फॉर्डम्स, और फिर मजिशियन जो है, और फिर वो क्या करेगा, वो एक टेस्टिफाइड, और फिर कहता है मजिशियन जो है वो प्रेडिक्शन देगा, एक वो टेस्टिफाइड प्रेडिक्शन देगा, क्या, द फेट ऑफ द लुवस, जो उस वक्त बादशाह था उसका, इटली का लुवस, द फेट ऑफ द लुवस एंड द फॉल ऑफ द रूम्स, वो लुवस की किस्मत के बारे में बताएगा, और रूम के फॉल के, रूम का जो पॉप है उसके फॉल, उसके डाउनफॉल का बताएगा। तो ऐसे बताएगा गैलीलियो की टेलीस्कोप से, और तुम्हारे ये सारा नज़ारा तुम्हारा देख के वो फिर कहता है फैसले करेगा, तुम्हारे डाउनफॉल लुवस के फैसले करेगा। ये हवाला उसने वो गैलीलियो का दे दिया। देन सीज ब्राइट लिव टू मॉर्न दाई रैविश्ड हेयर, और फिर ए खूबसूरत लड़की, कहता है, और देन कहता है फिर तुम रुक जाओ, तुम स्टॉप हो जाओ, तुम बंद करो अब रोना, ए खूबसूरत लड़की, टू मॉर्न दाई रैविश्ड हेयर, तुम्हारे इस कटी हुई लट के ऊपर रोना बंद करो, विच आर न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्फीयर, उसने तो आसमान पे एक न्यू ग्लोरी, न्यू अजमत पैदा कर दी है। एंड ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड कैन बोस्ट, दुनिया की तमाम खूबसूरत जो लटे हैं, या औरतों की जो लटे हैं, या लॉक्स जो हैं, ट्रेसेस का मतलब लिखें लॉक, ये लॉक जो है अगर सारी इकट्ठी हो जाएं, शैल ड्रू सच एनवी एज द लॉक यू लॉस्ट, इतनी एनवी क्रिएट नहीं कर सकती, या इतनी शोहरत नहीं पा सकती जितनी तुम्हारी एक लॉक ने पा ली है। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आईज, और फिर ये भी सोचो कि जो तुम्हारी आंखों से कितने लोगों की डेथ हुई है। व्हेन आफ्टर मिलियंस लैंड्स योरसेल्फ शैल डाइज, जैसे कि लाखों लोग मर चुके हैं, मिलियंस, जैसे कि इतने लोग जो हैं वो तुम्हारी नजरों से मर चुके हैं, उनकी डेथ हुई है, योरसेल्फ, एक दिन तुम्हें भी मरना है। When those fair suns shall set, and set they must, और तुम्हारी ये आंखों की चमक जो है वो मट्टी में मिल जाएगी, and set they must, और ये हम मिलनी है, और ये आखिर मिलनी है, आखिर ये सूरज ढलना है, ये रोशनी का। And all those tresses shall be laid in the dust, और ये तमाम जो लॉक्स हैं, ये दुनिया की तमाम खूबसूरत लटे जो हैं ये मट्टी में मिल जाएंगी। The Lord the muse shall consecrate to fame, लेकिन तुम्हारी जो लॉक जो है वो डेडिकेट हो गई है किसके लिए, शोहरत के लिए, हमेशा की अजमत के लिए। एंड मिडस्ट द स्टार इंस्क्राइब बिलिंडा नेम्स, और आसमानों पे हमेशा बिलिंडा का नाम जो है वो चमकता रहेगा। नहीं जी, वी हैव लर्न लाइन टू लाइन टेक्स्ट एंड वी हैव फिनिश्ड रेप ऑफ लॉक, लाइन टू लाइन टेक्स्ट। अगर आपने मुझे फॉलो किया है और मेरे एक एक लेक्चर को लाइन टू लाइन सुना है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और आपने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो लर्न कर लिए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं असल में टाइम नहीं लगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम निकाल के, मेरे पास कल मैं कल जनाब सारी रात पढ़ता रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ जी, आप ऐसा करें, अपनी बुक्स का इंतज़ाम करें किसी तरह से, चाहे वो अपने दोस्तों से ही, आप उनसे कहें कि वो आपको स्नैपशॉट उसके सेंड कर दें, और साथ साथ सुनने की कोशिश करें डेली बेस पे। असल में मेरा इशू जो है, मैंने बताया था कि मैं इसको मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको ऑडियो जो है ना, ऑडियो चल जाता है उसका, अगर हम रिकॉर्ड करते हैं इसके थ्रू, जूम के थ्रू। चले, मैं कोशिश करूँगा कि वो निकाल के ना आपको कोई सेंड करूँ, उसे चलाए, वो ऐसे ना कम MB का बनता है, उसमें सेंड भी हो जाता है, तो विल ट्राई। नहीं, आप साथ जैसे जैसे अगर बुक्स होती ना आपके पास, दैट वाज इजी।